So welcome student to my lecture number 5 of electrochemistry. Hope you are all well and doing as I am guiding you, making proper notes, okay, and solving homework questions that I am giving you. And further you can do it practice work from any of your book that is available to you. Okay? So in the last class, what we are doing, let us quickly recap, then we will proceed for today's topic. It is clear to you what is the name of today's topic. But before going into that one, let us take a brief overview of previous lecture. In the previous lecture, student, what we have done, now we have discussed about the electrochemical cell. I hope you remember. I have introduced one zinc electrode and copper electrode in its salt solution. Okay? In this half cell, anode was there and oxidation took place. Over here reduction took place, therefore it was referred as cathodic half cell reaction. And student, for writing the cell representation, today we are going to do lot many questions from here. Now first and foremost, this is anodic half cell reaction, this is cathodic half cell reaction. When I will add these two, I will get the cell reaction. Okay, and students, cell representation was given like this one. Remember it very well. Today we are going to solve many numericals on this one. So how to represent it? That first you have to write anode, then anodic solution, then salt bridge, then cathodic solution, and then cathode. So this will be your order of writing or representing any electrochemical cell. Okay, fine. Now student, in the last class I have left you one question, one or two questions. What is that? Now one of the question that is obvious to come in your mind, that sir, why zinc is losing electron and copper is gaining electron? Why not the reverse one? The first question is this one. Second question, sir, why you are dipping the electrodes in its salt solution? उसी के salt solution में आप क्यों deep कर रहे? This was another question that was posted or that should be posted by you. Next student, if I proceed further, then I can ask over here कि sir, what is the EMF of this cell? इसका EMF कितना होगा इस सेल का, वो हम कैसे मेजर करेंगे, वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? So these are the few questions that definitely come up in your mind. Now student, answer will be given by the term स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. सारा आंसर करेगा ये वाला टर्म तुम्हारे लिए, जिसका नाम क्या है स्टूडेंट? द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. फाइन, दिस विल बी माय लेक्चर 5. The definition of this is clearly written, student. I will explain also, but I have written it to save time. Okay, so it is a measure of the tendency of an electrode. गौर से देखना, it is the measure of the tendency of an electrode to lose or gain electron with respect to SHE. एक नया टर्म आ गया यहाँ पर, with respect to standard hydrogen electrode एक नया टर्म आ गया. We will discuss this one. ठीक है, when it is in equilibrium with a solution of its salt at standard state. ठीक है, फाइन. ये क्या बोल रहा है यहाँ पर? Now it is the standard electrode potential. It is given by the symbol student E naught. ठीक है, it is given by the symbol E naught. E naught से इसका सिंबलाइजेशन हम लोग करते हैं, E naught. फाइन, कोई दिक्कत नहीं. Now student, what it wants to say, now it is the measure of tendency of an electrode to lose or gain electron, with respect to SHE. थोड़े देर बाद हम बताएंगे SHE क्या है. ठीक है, फाइन. बट नाउ, फॉर नाउ, यहां पर इट इज द मेजर टू लूज और गेन इलेक्ट्रॉन. ठीक है, ये हो गया यहां पर, इट इज द मेजर ऑफ लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. अब देखो स्टूडेंट, इट इज अ मेजर ऑफ टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन टू लूज और गेन इलेक्ट्रॉन विथ रेस्पेक्ट टू SHE. हम थोड़े देर बाद बताएंगे क्या है. ठीक है, फाइन. उसके बाद देखो लिखा हुआ स्टूडेंट, व्हेन इट इज इन इक्विलिब्रियम विद अ सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ इट्स सॉल्ट. यहां पर ठीक है, व्हेन इट इज इन इक्विलिब्रियम विद अ सॉल्यूशन ऑफ इट्स सॉल्ट, मतलब उसी के सॉल्ट सॉल्यूशन में डीप करना है तब जाके बात बनेगा. उसी के सॉल्ट सॉल्यूशन में डीप करना तब जाके बात बनेगा. उसी तरीके से डेफिनेशन को डाला गया है. सो मेजर ऑफ टेंडेंसी टू लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक है, व्हेन इट इज डिप्ड इन इट्स क्या? सॉल्ट सॉल्यूशन एट स्टैंडर्ड स्टेट. स्टैंडर्ड कंडीशन में रहना है तब जाके मेरे को मिलेगा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. अब स्टूडेंट नेक्स्ट सवाल आएगा यहां पर, क्या ना, व्हाट इज स्टैंडर्ड कंडीशन? ना स्टैंडर्ड कंडीशन क्या है ना, ये जो आप सॉल्यूशन लिए हैं, दिस सॉल्यूशन शुड बी 1 मोलर. ठीक है, ये जो सॉल्यूशन आपने लिया है, दिस सॉल्यूशन शुड बी 1 मोलर. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं.
Now student, the temperature in which this experimentation has been done, that should be 298 Kelvin. That should be 298 Kelvin. I hope no problem. And if anywhere we are using gas as an electrode, then the pressure of that gas should be क्या student? 1 bar pressure. So 1 molar solution होना चाहिए, 1 bar pressure होना चाहिए और 298 Kelvin. And if somewhere if we are using gas as an electrode, then the pressure should be 1 bar. If this condition is maintained, then the experimentation is done in standard condition. This you have already done in थर्मोडायनेमिक्स. ठीक है, फाइन. तो ये था बात. ध्यान से समझना स्टूडेंट, आज का क्लास पूरा समझने वाला है. ठीक है, प्रॉपरली पे अटेंशन एंड अंडरस्टैंड द क्लास. तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या कहा, तो हम लोगों ने सीख लिया कि ये कौन इलेक्ट्रोड कितना इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा या गेन करेगा जब मैं उस इलेक्ट्रोड को किस में डीप करके रखूंगा ना, उसी के सॉल्ट सॉल्यूशन में डीप करके रखूंगा एट स्टैंडर्ड कंडीशन. ठीक है, फाइन. आई होप यू हैव अंडरस्टूड. कोई दिक्कत नहीं, फाइन. अब स्टूडेंट यहीं पर मैं मेंशन कर देना चाह रहा हूं वरना मैं भूल सकता हूं. व्हाट इज दैट स्टूडेंट, यहां पर ना आईयूपीएससी रिकमेंडेशन, आईयूपीएससी का रिकमेंडेशन है यहां पर. वो क्या स्टूडेंट ना, यूज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एज स्टैंडर्ड रिडक्शन, एज स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, एज स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल. आपको कहा गया है आईयूपीएससी द्वारा कि जब भी आप ई नॉट का वैल्यू यूज करेंगे वो क्या यूज होगा ना, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल यूज होगा. स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यूज होगा. मतलब फॉर रिडक्शन रिएक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको यूज करना है. दिस इज स्टैंडर्डाइजेशन. ठीक है, डन बाय आईयूपीएससी सो दैट वर्किंग रिमेन्स यूनिफॉर्म एंड देयर इज नो ऑप्शन ऑफ एनी मिसकॉन्सेप्शन एंड स्टूडेंट कंफ्यूजन. सो आईयूपीएससी का रिकमेंडेशन है कि आप ई नॉट का वैल्यू जब भी लीजिएगा वो रहना चाहिए रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. क्लियर हो गया, फाइन. नाउ स्टूडेंट वी आर गोइंग टू डिस्कस फ्यू थिंग. व्हाट इज दैट, यहां पर ना कैलकुलेट, एक क्वेश्चन के साथ शुरू करता हूं. कैलकुलेट. ठीक है, ईएमएफ ऑफ डैनियल सेल, ये मान लो तुमको दे दिए यहां पर. कैलकुलेट ईएमएफ ऑफ डैनियल सेल. ठीक है, ये आपको दे दिया गया. ईएमएफ ऑफ डैनियल सेल आपको निकालने बोल दिया गया. गिवन कुछ एक चीज दिया रहेगा. गिवन वो क्या स्टूडेंट, ध्यान से समझना यहां पर. ई नॉट, ठीक है, Zn2 प्लस Zn, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस 7.6 वोल्ट और ई नॉट Cu2 प्लस Cu इज इक्वल टू प्लस 0.34 वोल्ट. ये हम तुमको दे दिया यहां पर. स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे दिया. ठीक है, ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर. फर्दर दे आर रिडक्शन पोटेंशियल. ये सब रिडक्शन पोटेंशियल भी है यहां पर. अब समझते हैं यहां पर कि कैसे ये रिडक्शन पोटेंशियल है और ये कैसे ये लिखा हुआ है यहां पर. ठीक है, पहले इसको समझते हैं फिर ये न्यूमेरिकल हम लोग करेंगे. सो लेट अस अंडरस्टैंड एट फर्स्ट. आई हैव रिटन ई नॉट Zn2 प्लस स्लैश Zn माइनस 0.76 वोल्ट. यही मैंने लिखा है तुम्हारे लिए. ठीक है, फाइन. अब ये देखो, ये जो लिखा हुआ है, ये जो पोर्शन है, ये क्या है स्टूडेंट, Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स क्या, जिंक. दिस रिएक्शन इज रिडक्शन रिएक्शन. उसी का रिडक्शन पोटेंशियल यहां दिया हुआ है. बात समझ में आया यहां पर. सिमिलरली स्टूडेंट आई हैव रिटन एज ई नॉट Cu2 प्लस Cu, ये क्या दिया हुआ है, 0.34 वोल्ट. ये आपको दिया हुआ, कोई दिक्कत नहीं. तो ये कैसा लिखा हुआ है, Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स क्या, Cu. आई होप यू कैन easily understand how the representation should be made. So reduction reaction तुमको दिख रहा है, Zn2 प्लस बदल रहा है जिंक में, कॉपर 2 प्लस बदल रहा है किसमें, कॉपर में. तो तुमको क्लियरली दिख रहा है ये चीज मेरा हो रहा है यहां पर. क्लियर. सो देयरफॉर द रिप्रेजेंटेशन इज इन दिस मैनर. तो ये रिप्रेजेंटेशन तुमने सीख लिया. अब फाइनली एक चीज सीख लो. वो क्या स्टूडेंट, यहां पर ना जिसका जितना, तुम चाहो तो हिंदी में लिख लो, हिंदी में लिख लेना स्टूडेंट, जिसका जितना ई नॉट वैल्यू नेगेटिव, ई नॉट वैल्यू यहां पर मैं रिडक्शन पोटेंशियल का बात कर रहा हूं. अभी से ई नॉट जब भी मैं बोलूंगा दैट इज रिडक्शन पोटेंशियल, क्योंकि आईयूपीएससी का स्ट्रिक्ट रिकमेंडेशन है कि यूज रिडक्शन पोटेंशियल. सारा फॉर्मूला भी उसी तरीके से बनाया गया है. ऑल द फॉर्मूला हैज बीन फ्रेम्ड टेकिंग इनटू कंसीडरेशन रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. ओके, नाउ स्टूडेंट लेट मी फर्दर गो. यहां पर क्या, जिसका जितना नेगेटिव ई नॉट वैल्यू,
उसका इलेक्ट्रॉन छोड़ने का टेंडेंसी ज्यादा, जिसका जितना पॉजिटिव ई नॉट वैल्यू उसका इलेक्ट्रॉन गेन करने का टेंडेंसी ज्यादा। हिंदी में लिख लो ये चीज, क्लियर, फाइन। सो मोर नेगेटिव ई नॉट, more easily electron can be lost, more positive E naught, more easily electron can be accepted, gained। बस ये चीज दिमाग में रखना यहां पर, ठीक है, फाइन। तो इसी से तुम्हारा आंसर, एक आंसर क्लियर हो गया स्टूडेंट। द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक इज हाउ मच स्टूडेंट, -0.76 वोल्ट, ठीक है। रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर क्या, 0.34 वोल्ट। नाउ स्टूडेंट इफ आई आस्क यू दैट इफ आई ज्वाइन दिस टू, इन दोनों को अगर मैं ज्वाइन कर दूं स्टूडेंट, तब फिर कौन छोड़ेगा इलेक्ट्रॉन और कौन गेन करेगा। अब तो तुम सीख लिया सर, जिंक विल लूज इलेक्ट्रॉन एंड कॉपर विल गेन इलेक्ट्रॉन। इट्स नाउ क्लियर टू यू यहां पर, एंड इट इज कमिंग फ्रॉम देयर रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू। अब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि कौन एनोड की तरह काम करेगा और कौन कैथोड की तरह काम करेगा। एनोड वो होगा जो इलेक्ट्रॉन छोड़ सकता है, ऑक्सीडेशन, कैथोड वो जो इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, रिडक्शन। आई होप यू हैव क्लियर दिस कॉन्सेप्ट बाय नाउ वेरी वेल। अब स्टूडेंट आते हैं टू कैलकुलेट दिस न्यूमेरिकल, कैलकुलेट ईएमएफ ऑफ द डैनियल सेल। तो ई नॉट वैल्यू दिया हुआ है, आई हैव गॉट ए फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन ईएमएफ ऑफ द सेल। तो ईएमएफ ऑफ द सेल इज ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मैंने लिखा है, दिस इज रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ऑलवेज रिमेंबर दिस वन, लर्न दिस फॉर्मूला, इस फॉर्मूला को लर्न कर लेना, नाउ एंड देन लगेगा। देन स्टूडेंट व्हाट विल बी माय कैलकुलेशन, क्या मेरा कैलकुलेशन होगा स्टूडेंट, ना ई नॉट कैथोड कितना है, कैथोड कौन है स्टूडेंट। नाउ इट्स क्लियर टू यू दैट दिस वन विल एक्ट एज कैथोड, दिस वन विल एक्ट एज एनोड। क्यों ना, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, ये गेन करेगा, ऑक्सीडेशन जहां होता है वो एनोड होता है। नाउ इट्स क्लियर टू मी। तो कैथोड कौन है स्टूडेंट यहां पर, 0.34 माइनस, ये माइनस खुद ही है 76, तो ये वाला वैल्यू आएगा 1.1 वोल्ट। सो दिस इज योर कॉन्सेप्ट। तो इस तरीके से मेरा ईएमएफ ऑफ द सेल कैलकुलेट किया जाता है। उम्मीद है कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्लियर, फाइन। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। नाउ स्टूडेंट देयर आर फ्यू मोर थिंग्स दैट टू बी अंडरस्टूड, ठीक है। क्या है ना, पहले अब डेफिनेशन को फिर से एक बार देख लेते हैं। इट इज ए मेजर ऑफ टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड to lose or gain electron with respect to standard hydrogen electrode, with respect to किसके रेस्पेक्ट में ना, SHE के रेस्पेक्ट में। अब ये SHE क्या है स्टूडेंट, देख लेते हैं यहां पर, ठीक है, फाइन। SHE क्या है वो देख लिया जाए, लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट दिस SHE इज। सो आवर नेक्स्ट स्टूडेंट डिस्कशन विल बी ऑन क्या ना, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है स्टूडेंट, तो चलो हेडिंग डाल देते हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टूडेंट इट इज सेड इन शॉर्ट एज SHE। ये है क्या स्टूडेंट, यहां पर ना एक रॉकेट नुमा एक ग्लास वेसल है, लाइक दिस, एक रॉकेट नुमा ग्लास वेसल लाइक दिस, ठीक है, like this, and it is kept in a beaker filled with a solution। उसी का ही सॉल्ट सॉल्यूशन की तरह कुछ होना चाहिए, कॉमन आयन रहना चाहिए जो आप यूज करोगे एज इलेक्ट्रोड, ठीक है। दिस ब्लू कलर थिंग इज मेड अप ऑफ ग्लास, ये एक वेसल है, ये भी कांच का बना हुआ है। यहां से मैं इनपुट करूंगा स्टूडेंट हाइड्रोजन गैस, and I will maintain standard condition, and standard condition is clear to you. Since I am using gas student, it will be 1 bar, temperature to be maintained at 298 Kelvin, that is 25 degree centigrade, है ना, room temperature, कोई दिक्कत नहीं, fine। Now student I will keep a solution that should have common ion to this hydrogen, and the solution taken is student क्या यहाँ पर ना, HCl aqueous, HCl aqueous लिया हुआ है, एंड दिस शुड बी मेंटेन्ड इन क्या स्टूडेंट, 1 कैपिटल M, 1 मोलर सॉल्यूशन, क्योंकि स्टैंडर्ड कंडीशन मेंटेन करना है। नाउ स्टूडेंट इफ आई पास हाइड्रोजन गैस, नथिंग विल हैपन बिकॉज इट इज ए गैस, ये आएगा बबल बनाते हुए बाहर चला जाएगा। नाउ टू मेक एन reaction possible, to make a chemical reaction possible, to make loss or gain of electron possible, I have to take a metal for the support of this hydrogen gas, and the metal taken is an inert metal to this acid, and that metal will be best suited metal is what student, na platinum,
बेस्ट सुटेड मेटल इज प्लैटिनम। तो ये मेरा हो गया क्या स्टूडेंट ना पीटी स्ट्रिप, दिस वन इज प्लैटिनम स्ट्रिप, आई विल टेक इट। और ये प्लैटिनम वायर, दिस इज माई प्लैटिनम वायर, सो दिस आई विल टेक, फाइन। तो ये प्लैटिनम वायर एंड प्लैटिनम स्ट्रिप एक्ट्स एज support for this hydrogen gas. This hydrogen gas will come and get adsorb, adsorb, ठीक है फाइन। एक नया वर्ड मैं यूज कर रहा हूं स्टूडेंट यहां पर, दैट इज क्या स्टूडेंट ना एडजॉर्ब, एडजॉर्ब, एडजॉर्ब मतलब सरफेस पर आके टिक जाना, ए बी नहीं है ए डी है यहां पर, सरफेस पर जाके टिक जाना। तो गैस आके इस सरफेस पर टिक जाएगा और इलेक्ट्रॉन का लेन देन होगा और मेरा रेडॉक्स रिएक्शन, अगर जरूरत होगा तो रेडॉक्स रिएक्शन भी होगा, केमिकल इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन होगा। सो दिस इज योर कंस्ट्रक्शन ऑफ SHE। कोई दिक्कत नहीं, ये हाइड्रोजन गैस यहां से आया, यहां पर चिपका, इलेक्ट्रॉन गेन या लॉस किया एज द केस माइट बी, और स्टूडेंट मेरा रिएक्शन होते हुए चला गया। सो ये है कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है फाइन। नाउ स्टूडेंट आई हैव एक्सप्लेन्ड द थिंग वेरी वेल टू यू, मैं एक्सप्लेन तुमको बढ़िया से कर दिया हूं यहां पर। अब तुम्हारा काम है स्टूडेंट क्या यहां पर ना, प्लीज NCERT से आप थोड़ा सा पढ़ लेना, और अगर नोट हल्का सा बनाना होगा बना लेना। देख लो यहां पर लिखा हुआ है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड SHE, प्लीज मेक नोट फ्रॉम हियर, अगर जरूरत पड़ेगा। मैं सारा कंस्ट्रक्शन तुमको समझा दिए, देयर इज अ टाइम कांस्टेंट, सो देयरफॉर स्टूडेंट, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है यहां पर, ठीक है फाइन। सो देयरफॉर स्टूडेंट देयर इज अ टाइम कांस्टेंट, प्लीज मेक नोट फ्रॉम हियर। मैं तुमको समझा दे रहा हूं, तुम समझ लो, और जहां पर जो जरूरत है वो मैं दे रहा हूं। तो ये है SHE का सेक्शन, जस्ट रीड वंस फ्रॉम देयर, वहां से एक बार पढ़ के आप खुद कर लीजिएगा, ठीक है फाइन। नाउ स्टूडेंट वन मोर थिंग आई हैव टू मेंशन ना, बाई कन्वेंशन, ध्यान से देखना, बाई कन्वेंशन, बाई कन्वेंशन, ठीक है, किसका द्वारा ना, IUPAC के द्वारा स्टूडेंट, इसका रिडक्शन पोटेंशियल हैज बीन टेकन एज, गौर करना स्टूडेंट, इसका रिडक्शन पोटेंशियल हैज बीन टेकन एज, क्या लिया हुआ है स्टूडेंट इसका यहां पर ना, टेकन एज स्टूडेंट यहां पर ना 0.00 वोल्ट, बाई कन्वेंशन ये लिया हुआ है। फर्दर मोर स्टूडेंट यू कैन सी द रिडक्शन रिएक्शन, अगर मैं इसके लिए लिखूंगा तो इसके लिए रिडक्शन रिएक्शन क्या होगा स्टूडेंट, व्हाट ना H प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स क्या, हाफ H2। इस तरीके से भी कर सकते हैं, और ऐसा भी तुम लिख सकते हो, और ऐसा भी लिख सकते हो, वो क्या स्टूडेंट यहां पर ना 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स क्या, हाइड्रोजन गैस। अब ऐसा भी लिख सकते हैं, इट्स योर चॉइस, इट्स योर चॉइस, ये दोनों में कोई भी तुम लिख सकते हो। ये हो गया रिडक्शन रिएक्शन लिखे, तो रिडक्शन रिएक्शन में क्या ना H प्लस से H2, and student hydrogen can't act as an electrode, ठीक है, therefore a support has to be given and that has to be mentioned as well as platinum। फेज बाउंड्री रहेगा ही, ये सॉल्यूशन फेज है, ये गैसियस फेज है, ये सॉलिड फेज है, तो फेज बाउंड्री दिया हुआ है, फाइन। सिमिलरली वी हैव डन इन दिज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एज वेल, इसी तरीके से हम लोगों ने काम किया। ये मेरा एक्वस, ये मेरा सॉलिड, ठीक है, जिंक इलेक्ट्रोड के बारे में बात कर रहे थे, तो ये फेज बाउंड्री, दिस इज योर फेज बाउंड्री, कॉन्सेप्ट क्लियर, फाइन। सो दिस इज द वे हाउ यू हैव टू प्रोसीड। तो ये मेरा है SHE कंस्ट्रक्शन, मैंने तुमको बता दिया यहां पर, फाइन। अब क्या किया गया स्टूडेंट ना, ये सब वैल्यू कैसे लाया गया, हाउ दीज वैल्यू हैव बीन ऑब्टेन्ड स्टूडेंट, डिटरमाइंड, कैसे ये किया गया ना, बाय कनेक्टिंग दिस SHE विथ जिंक या कॉपर इलेक्ट्रोड। फॉर एग्जांपल क्या किया गया स्टूडेंट यहां पर ना, एक सेल बनाया गया कुछ इस तरीके का, ठीक है, कुछ इस तरीके का सेल बनाया गया। गौर करना स्टूडेंट, ये मेरा मान लो जिंक का अगर हमको काम करना है, जिंक का अगर हमको काम करना है, और ये मेरे को लेना है SHE, क्योंकि ऑल हैव बीन फाउंड विथ रेस्पेक्ट टू SHE। दिस इज माय प्लैटिनम, ठीक है, ये मेरा जिंक, आई हैव डिप्ड इट इन HCl सॉल्यूशन, सब बोल दिया, आई हैव डिप्ड इट इन जिंक सल्फेट सॉल्यूशन, जिंक सल्फेट HCl एट स्टैंडर्ड कंडीशन, सब स्टैंडर्ड कंडीशन में लिया हुआ है। अब इसको ज्वाइन कर दो, अब इसको ज्वाइन कर दो स्टूडेंट, ज्वाइन कर दो, और एक सॉल्ट ब्रिज डाल दो, और एक सॉल्ट ब्रिज डाल दीजिए, ये सॉल्ट ब्रिज डाल दीजिए, ये सॉल्ट ब्रिज डाल दीजिए, जहां हम डाल दिए इट विल फॉर्म एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ये SHE है, ये जिंक है, एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बन जाएगा यहां पर स्टूडेंट। एंड स्टूडेंट सिंस यू हैव टेकन दिस वन बाय कन्वेंशन एज 0 volt, you have taken this one by convention as 0 volt, so whatever the reading that is going to come up over here is the reading for the electrode। तो इसी तरीके से हम लोग निकाल लेते हैं यहां पर क्या ना,
क्या मेरा है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। फाइन। सो फॉर दिस केस, इन दिस केस स्टूडेंट, जिंक एक्ट एज एनोड, यहां पर ये जिंक एनोड की तरह काम करता है, वो भी मैं कैलकुलेट कर लेता हूं विद द हेल्प ऑफ स्टूडेंट, यहां पर विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर मैं कैलकुलेट कर लेता हूं, जान लेता हूं, कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं, यहां पर पोटेंशियोमीटर का ऑब्जर्वेशन से हम जान लेते हैं कि कौन एनोड और कौन कैथोड की तरह काम कर रहा है। ये वाला एनोड की तरह काम कर रहा है, हम जान लेते हैं यहां पर। तो ये अगर एनोड की तरह काम कर रहा है, यहां पर मैं वोल्ट मीटर लगा के रखूंगा, तो वोल्ट मीटर रीडिंग हमको जो देगा यहां पर, तो वोल्ट मीटर रीडिंग जो इस केस में देता है, इस केस के लिए मैं बोल रहा हूं यहां पर, वो रीडिंग आता है स्टूडेंट 0.76 वोल्ट। ठीक है, वोल्ट मीटर रीडिंग मतलब ईएमएफ। तो मेरे लिए क्या फॉर्मूला है स्टूडेंट ना, ईएमएफ ऑफ द सेल, ईएमएफ ऑफ द सेल इज ई कैथोड माइनस क्या, ई एनोड। बात समझ में आ रहा है? तो फिर ईएमएफ तो तुमको मिला गया है 0.76 वोल्ट इज इक्वल टू ई नॉट कैथोड। तुम्हारे लिए क्या है स्टूडेंट यहां पर ना, कैथोड और एनोड तुमको मालूम चल गया, ये जिंक मेरा एनोड है, ये कैथोड है बाय हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर। तो फिर यहां पर स्टूडेंट ये वाला कैथोड का वैल्यू बाय कन्वेंशन क्या है ना, 0, और ये वाला क्या है स्टूडेंट आएगा ना, इसी को तो निकालना है, इसी को तो निकालना है, इसी को तो निकालना है। तो फिर ई नॉट Zn2 प्लस Zn मेरे लिए क्या निकल गया ना, माइनस 0.76 वोल्ट। लाइक दिस द कैलकुलेशन इज डन, लाइक दिस द कैलकुलेशन इज डन। ठीक है, फाइन। मैं और एक तुमको बता देता हूं स्टूडेंट, और एक तुमको बता देता हूं, वो क्या स्टूडेंट ना, सिमिलरली आई विल मेक, सिमिलरली आई विल जस्ट, यहीं पर मैं दिखा दूं क्या, इसी फिगर में बात बता देता हूं यहां पर। अच्छा छोड़ो, कितना समय लगेगा, दिस योर केस। ठीक है, ये हो गया लाइक दिस, लाइक दिस इज योर SHE, this is your SHE. Now I am taking student कॉपर इलेक्ट्रोड, ये कॉपर डाल दिए, कॉपर सल्फेट, इसको ज्वाइन कर दो यहां पर, वही उसी तरीके से, दिस इज माय सॉल्ट ब्रिज। ठीक है, नाउ इट इज कॉपर एंड दिस इज योर SHE, ये SHE डाल दिया गया यहां पर। ठीक है, फाइन। नाउ स्टूडेंट अगेन विद द हेल्प ऑफ वोल्ट मीटर मैं यहां से जान लूंगा ईएमएफ ऑफ दिस सेल, इस सेल का ईएमएफ होता है कॉपर और SHE लिया हुआ है 0.34 वोल्ट, इसका मैं जान लूंगा। फिर मैं पोटेंशियोमीटर डाल के ये चेक कर लूंगा कि एनोड और कैथोड कौन है। तो यहां पर देखा गया दिस कॉपर इज एक्टिंग एज कैथोड एंड दिस वन इज एक्टिंग एज एनोड। ठीक है, तो फिर मेरे लिए फॉर्मूला हो जाएगा ई नॉट सेल इज इक्वल टू, ठीक है, ई नॉट सेल इज ईएमएफ ऑफ द सेल एट स्टैंडर्ड स्टेट, यही वाला चीज, यही वाला चीज। ठीक है, ईएमएफ ऑफ द सेल एट स्टैंडर्ड स्टेट, ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। स्टूडेंट अब हमको मालूम चल गया क्या है ना, ये है 0.34 वोल्ट, ये ई नॉट कैथोड हमको मालूम चल गया कि दिस वन एक्ट एज कैथोड। नाउ अभी ये कैथोड की तरह काम कर रहा है यहां पर। ठीक है, इस फिगर पर मत जाओ यहां पर। ठीक है, ये कैथोड की तरह काम कर रहा है, ये हमको मालूम चल गया है। तो ये कैथोड की तरह काम कर रहा है, तो ई नॉट कॉपर 2 प्लस कॉपर, दिस विल बी द रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। सब जानते हो एनोड तुम्हारे लिए SHE है, तो ये 0 वोल्ट, तो तुम्हारे लिए ई नॉट कॉपर 2 प्लस कॉपर क्या आ जाएगा स्टूडेंट, 0.34 वोल्ट। दिस इज द वे हाउ द थिंग्स आर कैलकुलेटेड विथ रेस्पेक्ट टू क्या, SHE। उम्मीद है तुमको समझ में आ गया स्टूडेंट। और इसी तरीके से स्टूडेंट वी हैव गॉट द कैलकुलेशन of determination of all the electrode potential, सारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेटल नॉन मेटल का इसी तरीके से कैलकुलेट होता है यहां पर। इट इज इन दिस पेज नंबर स्टूडेंट, आप लोगों की किताब में क्या हमको नहीं मालूम यहां पर। ठीक है, फाइन। दिस इज द होल लिस्ट इन योर चैप्टर ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, आपके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के चैप्टर में ये पूरा लिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मिलेगा, जो कि निकाला गया है, जो कि डिटरमाइन किया गया है बाय दिस मेथड, इसी मेथड से डिटरमाइन किया गया स्टूडेंट। ठीक है, इस ये वाला टेबल मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसी टेबल को तुम पढ़े हो इन योर जूनियर क्लासेस एज क्या, एक्टिविटी सीरीज। दिस यू हैव लर्नड इन द फॉर्म ऑफ क्या, एक्टिविटी सीरीज। फाइन, कोई दिक्कत नहीं। दिस डिटरमाइंस कि कौन इलेक्ट्रॉन जल्दी छोड़ेगा, कौन धीरे छोड़ेगा विथ रेस्पेक्ट टू ईच अदर, बट दे हैव डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ क्या, SHE। अब मेरा ये डेफिनेशन पूरी तरीके से क्लियर हो गया कि इट इज ए मेजर ऑफ द टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू लूज और गेन इलेक्ट्रॉन विथ रेस्पेक्ट टू क्या, SHE, when it is in equilibrium with a solution of its salt at क्या, standard state. By this it is clear now that what are the things that is happening. I hope I made you clear. Fine. और एक न्यूमेरिकल भी कर दिए। अब स्टूडेंट और एक आध न्यूमेरिकल करके आज का क्लास को फिनिश करेंगे। ओके स्टूडेंट, लेट अस स्टार्ट न्यूमेरिकल ऑन दिस टॉपिक। ठीक है, क्या है मेरा क्वेश्चन स्टूडेंट, कंसीडर द फॉलोइंग रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, कंसीडर द फॉलोइंग रेडॉक्स रिएक्शन। क्या क्या कैलकुलेट करना है, सेल रिप्रेजेंटेशन करना है, ठीक है, हाफ सेल रिएक्शन लिखना है, ईएमएफ ऑफ द सेल कैलकुलेट करना है। दीज आर द 3 यू हैव टू डू फॉर ईच क्वेश्चन। रेडॉक्स रिएक्शन हैव बीन गिवन टू यू। ठीक है, E0 Pb2 प्लस Pb
इज इक्वल टू माइनस 0.13 वोल्ट। ये वाला थोड़ा सा छोटा हो गया, लिख लेना। ई नॉट PB2 प्लस स्लैश PB इज इक्वल टू माइनस 0.13 वोल्ट, and over here E naught AG plus slash AG is equal to 0.80 volt. ठीक है, that has been given. Now student, what I have to do this one for cell representation student, I have to get anode, anodic solution, cathode and cathodic solution, तब जाके मेरा काम होगा। तो वो एनोड और कैथोड जानेंगे कैसे ना, I have to get at first देयर ऑक्सीडेशन स्टेट। वहां से तुमको मिलेगा कि एनोड कैथोड कौन है, कौन इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है, कौन गेन कर रहा है। कैलकुलेट ऑक्सीडेशन स्टेट। उसको कैसे कैलकुलेट करोगे ऑक्सीडेशन स्टेट को स्टूडेंट? किसी भी मेटल के लिए 0 होता है। क्लास 11 रिमेंबर करना, क्लास 11 रिमेंबर करना, और अगर भूल गए हो तो एक बार रिवाइज कर लेना रेडॉक्स चैप्टर ऑफ क्लास 11 टू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन स्टेट। Silver over here is +1, you are all familiar. Lead over here is +2. So these are your oxidation state. Now there is no time for me to take you into the ride कि कैसे ये कैलकुलेट किया। आप रिवाइज कर लेना रेडॉक्स चैप्टर क्लास 11 में। सो लेड देखो कहां से कहां कन्वर्ट हुआ ना, लेड हैज कन्वर्टेड फ्रॉम 0 टू +2 एंड सिल्वर हैज कन्वर्टेड फ्रॉम +1 टू 0 यहां पर। ठीक है, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से कोई मतलब नहीं है यहां पर, स्ट्रेट अवे केवल तुमको चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट देखना है। तो 0 टू +2 हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। लॉस हो रहा है मतलब क्या? यहां पर मेरा चल रहा है ऑक्सीडेशन, मतलब क्या? दिस वन विल एक्ट एज एनोड, तो डेफिनेटली दिस वन इज एक्टिंग एज रिडक्शन, दिस वन विल एक्ट एज कैथोड। तो मेरे को मिल गया। तो व्हाट वाज द सेल रिप्रेजेंटेशन दैट इज टू बी फॉलोड स्टूडेंट? आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू in my previous lecture that it should follow student anode, anodic solution, salt bridge, cathodic solution, cathode। तो चलो बनाते हैं, यहां पर लिखते हैं। सो एनोड मेरे लिए क्या हो जाएगा स्टूडेंट ना, एनोड विल बी लेड फेज बाउंड्री, नेक्स्ट क्या आएगा ना PbSO4। ठीक है, सॉल्ट ब्रिज आएगा, उसके बाद क्या आएगा ना कैथोडिक सॉल्यूशन इज दिस वन, एंड स्टूडेंट फेज बाउंड्री, एंड फाइनली कैथोड। दिस इज योर आंसर फॉर सेल रिप्रेजेंटेशन। आपका पहला आंसर खत्म हो गया। तुम ऐसा लिख सकते हो, और यू कैन राइट इट लाइक दिस PB and the ion which is involved in the reaction, and the ion which is involved in the reaction, you can write that one also. So PB2 plus salt bridge, ion that is involved is Ag plus, ठीक है, salt bridge Ag। दिस इज द सेल रिप्रेजेंटेशन। मैंने ऑलरेडी बोल दिया है कि स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से कोई मतलब नहीं है। तुमको एनोड लिखना, एनोडिक सॉल्यूशन लिखना है, कैथोडिक सॉल्यूशन लिखना है, कैथोड लिखना है। दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। उम्मीद है समझ में आ गया। नाउ लेट अस गो फॉर द सेकंड क्वेश्चन, नंबर बी, हाफ सेल रिएक्शंस। हाफ सेल रिएक्शंस, सो इट्स क्लियर, वेरी इजी टू राइट। तो मेरा एनोड में क्या हो रहा है? एनोड हाफ सेल रिएक्शन। ठीक है, एनोड हाफ सेल रिएक्शन क्या हो जाएगा स्टूडेंट ना, लेड इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, एनोड है, ऑक्सीडेशन, एंड इट इज गोइंग टू गिव यू PB2 प्लस। कोई दिक्कत नहीं। कैथोडिक हाफ सेल रिएक्शन क्या हो जाएगा स्टूडेंट ना, कैथोडिक हाफ सेल रिएक्शन क्या हो जाएगा स्टूडेंट ना, कैथोडिक हाफ सेल रिएक्शन हो जाएगा क्या ना, सिल्वर प्लस कैथोडिक हाफ सेल रिएक्शन। कैथोड में क्या हो रहा है स्टूडेंट यहां पर ना, Ag प्लस से Ag, यहां पर कैथोड। ठीक है, फाइन। Ag प्लस से क्या होगा? Ag। ये होगा PB से PB2 प्लस एनोड में, और यहां पर होगा Ag प्लस से Ag। सो Ag प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स क्या? सिल्वर। दिस इज योर केस, दिस इज योर केस। ये हो गया कैथोडिक हाफ सेल रिएक्शन, ये हो गया एनोडिक हाफ सेल रिएक्शन। ठीक है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। एक चीज बढ़िया से याद रखना स्टूडेंट, वो क्या स्टूडेंट ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस एंड गेन शुड बी सेम। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस एंड गेन शुड बी सेम। तो यहां अगर 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा तो यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन गेन भी करेगा। तो फिर फाइनल मेरा कैथोडिक हाफ सेल रिएक्शन जो आएगा वो होगा 2Ag प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स किया 2Ag। फाइन, दिस इज योर एनोडिक हाफ सेल, दिस इज योर कैथोडिक हाफ सेल। ये दोनों का अगर तुम जोड़ दोगे, ये दोनों का अगर जोड़ दोगे, यू विल गेट द गिवन रिएक्शन, यू विल गेट द गिवन रिएक्शन जहां तुम इन दोनों को जोड़ दोगे। लास्ट क्वेश्चन क्या है मेरे लिए ना, क्वेश्चन नंबर C इज क्या, कैलकुलेशन ऑफ EMF ऑफ द सेल। तो EMF ऑफ द सेल कैसे कैलकुलेट मैं करूंगा ना, EMF ऑफ द सेल के लिए फॉर्मूला लिखो स्टूडेंट, E नॉट कैथोड माइनस क्या, E नॉट एनोड। ई नॉट कैथोड मेरे लिए क्या है स्टूडेंट, व्हाट इज दैट ना, ई नॉट कैथोड कौन कैथोड की तरह काम कर रहा है, सिल्वर कैथोड की तरह काम कर रहा है। यहां पर हमको मालूम चल गया, यहां से भी तुमको मालूम चलेगा स्टूडेंट, ये पॉजिटिव 0.80, ये नेगेटिव 0.13, तो कौन कैथोड की तरह काम करेगा ना, सिल्वर काम करेगा, सिल्वर काम करेगा। तो फिर डायरेक्टली तुम कर सकते हो यहां पर वो क्या ना, 0.80 माइनस 0.13 डायरेक्टली आप कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 0.93 वोल्ट। दिस इज EMF ऑफ द सेल। इस तरीके से तुमको न्यूमेरिकल करना होगा। ठीक है, चलो और एक न्यूमेरिकल जल्दी से देख लेते हैं। ओके स्टूडेंट, दिस इज योर नेक्स्ट रेडॉक्स रिएक्शन,
electrode potential have been given for zinc as minus 0.76 volt and for hydrogen it is 0 volt. You are all familiar. Again student, सबसे पहले हमको सेल रिप्रेजेंटेशन करना है. क्वेश्चन विल बी रिपीटेड इन द सेम मैनर. यही क्वेश्चन है यहाँ पर. सेल रिप्रेजेंटेशन, हाफ सेल रिएक्शन, ईएमएफ ऑफ द सेल. यही होगा. ये मेरा पहला सवाल था. सेकंड क्वेश्चन इज दिस वन. ठीक है. फॉर दैट अगेन स्टूडेंट क्विकली गेट देयर ऑक्सीडेशन स्टेट. सिंस इट इज मेटल इट इज 0. जो चार्ज है वही होगा, जानते हो, जो चार्ज है वही होगा. ठीक है, जो हम लोग पढ़े हैं क्लास 11 में रेडॉक्स में, जो चार्ज है वही होगा. यहां पर जो चार्ज है वही होगा. यहां पर अगेन इट इज इन द एलिमेंटरी फॉर्म, दैट इज 0. ये हो गया. नाउ स्टूडेंट व्हाट द चेंज दैट आई एम गोइंग टू ऑब्जर्व, ना ये 0 से चला जा रहा है +2 और ये +1 से जा रहा है 0. तो 0 से +2 मतलब ऑक्सीडेशन इज अकरिंग. Oxidation is occurring means what student? This is anode, so definitely this is cathode and reduction will take place over here. Then student cell representation क्या होगा ना, anode लिखना है, phase boundary, anodic solution, salt bridge, cathodic solution, then क्या cathode. I hope no problem, but a support is required, that is platinum. भूलिएगा नहीं इसको. मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करता है यहाँ पर ना, भूल जाता है. भूलना नहीं है किसी भी हाल में स्टूडेंट. ठीक है, एकदम नहीं भूलेगा ये चीज, ये भूल जाते हो यहाँ पर. तो मेरा पहला काम हो गया. नाउ लेट अस क्विकली गो इनटू क्या यहाँ पर ना, फॉर द हाफ सेल रिएक्शन. तो जल्दी जल्दी चलो करते हैं यहाँ पर. सो एनोडिक हाफ सेल रिएक्शन क्या होगा भाई? एनोडिक हाफ सेल रिएक्शन, तो जिंक 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, क्या बनाएगा? Zn2+ हो गया यहाँ पर. टेक नेक्स्ट स्टूडेंट, कैथोडिक हाफ सेल रिएक्शन क्या होगा ना, इट विल बी स्टूडेंट, ये कैथोडिक से कैथोड में, सो H+ इलेक्ट्रॉन गिव्स हाफ H2. ये हो जाएगा. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेन देन शुड बी सेम ऑलवेज, आई हैव टोल्ड यू. तो फिर इसको मल्टीप्लाई करके फाइनल आंसर तुम दे दोगे 2H+ 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स क्या स्टूडेंट यहाँ पर ना, हाइड्रोजन गैस. दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2. आई होप यू हैव गॉट द आइडिया. नाउ स्टूडेंट सी मेरे लिए क्या हो जाएगा, ये दोनों को ऐड कर दोगे, सेल रिएक्शन मिल जाएगा. ये सेल रिएक्शन है, दिस इज माय सेल रिएक्शन. दोनों को ऐड कर दोगे, मिल जाएगा. नंबर 3 इज ईएमएफ ऑफ द सेल. तो जल्दी से चलो उसको कर लिया जाए स्टूडेंट ना. E0 सेल इज इक्वल टू E0 कैथोड माइनस E0 एनोड. सब जानते ही हो कैथोड कौन है स्टूडेंट ना, हाइड्रोजन कैथोड. ये एनोड की तरह काम करेगा. नेगेटिव है, इधर से भी दिख रहा है, इधर चारों तरफ से दिख रहा है एनोड कैथोड कौन है. ठीक है, तो कैथोड मेरे लिए हो गया कौन ना, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड माइनस 0.76 वोल्ट. तो मेरे लिए हो गया +0.76 वोल्ट. सो दिस इज योर आंसर. उम्मीद है समझ में आया. अब 2 होमवर्क दे देता है स्टूडेंट, कर लेना उसको. ओके स्टूडेंट, एक क्वेश्चन दे दिया हूं, ये वाला होमवर्क कर लेना. ठीक है, कंप्लीट इट इन योर होमवर्क. निकल का है -0.25 वोल्ट और सिल्वर का है 0.80 वोल्ट. ये होमवर्क कर लेना. एक आखिरी पॉइंट पर बात करके खत्म करते हैं स्टूडेंट क्लास. ऐसा भी तुम्हारे लिए सवाल आ सकता है स्टूडेंट, किस तरह का तुम्हारे लिए सवाल आ सकता है यहाँ पर, वो तुम देख लो. यहाँ पर समथिंग लाइक दिस, इस तरीके से बोल देगा राइट रेडॉक्स रिएक्शन फॉर, तुमको सेल रिप्रेजेंटेशन दे देगा और बोलेगा रेडॉक्स रिएक्शन लिखिए. तो उसके लिए क्या करोगे? वेरी सिंपल स्टूडेंट, हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व सच टाइप ऑफ क्वेश्चन ना. ये है एनोड वाला सेक्शन. तो एनोड का रिएक्शन तुम्हारे लिए क्या होगा ना, एनोड लूज करेगा इलेक्ट्रॉन और एनोडिक सॉल्यूशन. क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं. और कैथोड का क्या होगा ना, कैथोड गेन करेगा इलेक्ट्रॉन Cd2+ से क्या होगा ना, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या हो जाएगा Cd, लाइक दिस. तो ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेन देन सेम है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेन देन सेम है. तो कुछ करना नहीं है, केवल क्या करना है स्टूडेंट ना, पकड़ के ऐड कर देना है. सो ऐड 1 और 2, इसको ऐड कर दो तो तुम्हारे लिए आ जाएगा स्टूडेंट ये और ये कैंसिल हो जाएगा. तो जिंक प्लस Cd2+ Zn2+ प्लस Cd. दिस इज योर रेडॉक्स रिएक्शन. अब ईएमएफ ऑफ द सेल निकालने बोलेगा, कैथोड एनोड दिया है वो तो डेफिनेशन से, तो फॉर्मूला से तुम कर ही लोगे. सो विद दैट आई फिनिश माय टुडेज लेक्चर स्टूडेंट. विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास. टिल देन स्टे सेफ एंड थैंक यू.